you read the question? Yeah. Mr. Z has made the following transactions during the financial year 2022-23. Investment 1, 8% corporate bonds having face value of 100. मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, करेक्ट. इट इज फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी. 1st June purchase 36,000 bonds at 86 come interest. Interest payable on 30th September, 31st March. 15 Feb sold 24,000 bonds, 92 x interest. तो एक परचेज है, एक सेल है, quite manageable. Yeah. Interest on bonds received on 30th September and 31st March. Okay. Investment 2, equity share of G Limited, face value 10. Okay. So there are two investments in this question. Equity share 1st April opening balance, 1st May purchase, 15 June bonus, 1st August right, 25th August renouncement, 16th September dividend, 1st December sold, 25th January interim dividend received, 31st March closing. Market price is given, and then this paragraph is new one, correct. यहाँ से यहाँ तक ठीक है. Both investments have been classified as what? Both are current investments. यहाँ तक भी ठीक है. From here we have new information. How to deal with it? We will check it out. Prepare what? Investment accounts. So bond का account अलग बनेगा, equity share का account अलग बनेगा. In the books of Mr. Z for 2022-23, average cost follow करना है. Then prepare P&L account. And this third one is new area. We'll talk about that later on. चलो, अभी तुम क्या करेगा सुन लो. तुम मेरे को बॉन्ड अकाउंट बना के देगा. कर सकता है बॉन्ड अकाउंट? कैन यू प्रिपेयर बॉन्ड अकाउंट? या सो प्रिपेयर, कम ऑन. ये सस्ता क्या बोल रहे आप? बोलो. नहीं, मैं टाइमलाइन बना के दे रहा हूं, आप लोग पूरा सम सॉल्व करेगा. बॉन्ड वाला पूरा कर देगा, इक्विटी शेयर साथ में करेंगे. आप बॉन्ड में थे मैडम?
स्टार्ट करें. On 1st June, no, dates are overlapping, no? We will prepare separate accounts for bonds and separate accounts for equity shares. So better to go for two separate accounts and two separate timelines. Otherwise it would be confusing. If you will make one timeline, then you will prepare both the accounts simultaneously. I always prefer to go for bond account first and then equity share account. Otherwise you will commit errors. चेक कर लो ये टाइमलाइन है. इंटरेस्ट भी आएगा, सॉरी, ईयर एंड को 31 मार्च, फिर क्लोज करेंगे. डन. Shall I proceed? Purchase 1st June, what was the last due date? 31st March. So April, May, June. April and May 2 महीने ही आएगा ना. कितना आ रहा है? 48,000. 36,000 इंटू 86 करो. जो भी प्राइस आएगा वो कम इंटरेस्ट है. माइनस 48,000 इंटरेस्ट. नहीं, माइनस करके बोलो. 40 मतलब 30,96,000 आया था. ओके. ये समझा परचेज. हाँ, 30th सितंबर.
कितना आ रहा है? 1,44,000। चल 30 सितंबर के बाद 15 फेब सेल क्रेडिट में आएगा ना? हाउ मेनी मंथ? लास्ट में 30 सितंबर था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी का 15 डेज। कितना आ रहा है? 72। और इधर अभी प्राइस 24,000 इंटू 92। क्यों? फरवरी 15 को वी विल कंसिडर हाफ मंथ। यहाँ पे लोग ने सबने ऐसे ही किया है, हाफ मंथ लेते हैं इंस्टीट्यूट। अगर आपको डेज लेना है ना, तो ये 72,000 भी फिर पॉइंट में आ जाएगा। समझ रहा है क्या? बोलो। और नहीं नहीं, पहले अमाउंट तो बोलो। 22,08,000। एक्स इंटरेस्ट ही है वो। थर्टी फर्स्ट मार्च प्रॉफिट और लॉस बाकी है ना? एक ही लॉट है। कितना आ रहा है? 20,32,000। selling price is more, so 1 lakh। बोलो प्रॉफिट क्लियर एवरीबॉडी?
Done. या प्रॉफिट और लॉस का पीएनएल बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे, अभी क्यों, इक्विटी शेयर में भी बहुत सारा पीएनएल आने वाला है, so we will prepare P&L afterwards. Done everybody? Abhi interest will be calculated on outstanding face value. कितना आ रहा है? 48. Year ending. Due date है ना? अरे 31st March is our year ending and 31st March is the interest due date. तो interest रिसीव नहीं करेंगे ड्यू डेट को, आएगा ना, दो इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए हर सम में, 30th September एंड 31st March. चलो अभी क्लोज करेंगे. How much? चेक करो तो 214 नहीं है, 6 है. 6 है, 216. वेर इट विल बी ट्रांसफर्ड, पीएनएल का भी बनाएंगे, बाद में बनाते हैं तभी इसका इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ क्लोज दिस लास्ट. बोलो कितना आ रहा है? 16,000. डन. विच अकाउंट इज डन? बॉन्ड अकाउंट प्रिपेयर किया.
इज इट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टाइमलाइन? बनाना है? बनाते हैं, ओके। सब सीक्वेंस में ही दिया है, देख लो। तो if you want you can prepare, you can, otherwise you can ignore, everything is in sequence। एग्जाम में कैसा है, बॉन्ड रहेगा तो हिडन रहता है इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर्स है तो अगर डेट सीक्वेंस में है तो टेंशन क्या है? आप बोलो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं बनाने का। पक्का क्लियर? स्टार्ट करो। एवरीबडी रेडी विद द फॉर्मेट? तो तुम लोग आंसर नहीं देते, प्लीज आंसर दो, थोड़ा इंटरेक्ट करता है। गुड आफ्टरनून नहीं बोलते हैं, ठीक है सर, इसके तो आंसर दे दो। या डन? रेडी विद द फॉर्मेट? या विल प्रोसीड। 1st April ओपनिंग बैलेंस। Opening balance 8,000 shares into 190. Clear everybody? 1st May purchase. $7,000 shares. क्या करें, कैलसी पे क्या वर्किंग में? ब्रोकरेज है ना, ब्रैकेट में कर दूं? $7,000 shares acquired at 230 rupees, तो मल्टीप्लाई करो 230 से प्लस 1% ब्रोकरेज, कितना आ रहा है? 100। डन एवरीबडी? ये क्या दिया, कम राइट प्राइस, राइट के बिफोर राइट प्राइस, तो ऑब्वियसली राइट के पहले ही हमने परचेस किया ना शेयर, तो राइट के पहले हम शेयर परचेस करेंगे, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज कम राइट प्राइस। ओके। 15th June बोनस। टू इज टू 5, क्या करूं ब्रैकेट में? हम ब्रैकेट में करूं, बोनस किस पे मिलेगा? 15,000 पे मिलेगा, सो 15,000 क्लियर एवरीबडी? 1st August क्या हो रहा है, इसका वर्किंग करना पड़ता है। कंपनी मेड राइट इश्यू इन 1:7 at 230, entire money was payable on 31st August, right to the extent of 30% are sold at 75, remaining rights are subscribed। आ जाओ वर्किंग में।
रिनाउंस का प्रीमियम कितना आ रहा है? 75। टू बी क्रेडिटेड टू P&L। यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? क्या प्राइस पे अक्वायर किया? टू 31st August is the last day। नहीं, 25th August, right to the extent of 30% of his entitlement is sold and remaining rights are subscribed. The entire money was payable by 31st August. So I would still go for 31st August. It is given clearly. That statement is given under the date of 25th August. On 25th August, what we have done, we have sold 30% rights. Remaining are subscribed. Doesn't mean on 25th August. Amount is payable by 31st August. So we consider 31st. Correct? How many shares? 2000 into 230. 480. Correct? नॉनी हुआ क्या बेटा? डन? क्या सोच रहे तुम लोग? रिजल्ट आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। सुन इधर, 16th September, now this is important, dividend, that correct? Dividend 6 rupees per share for the year ended 31st March 22। कौन से ईयर का डिविडेंड? 21-22 लास्ट ईयर का डिविडेंड है। इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। 16 सितंबर को डिविडेंड मिल रहा है। नो डिविडेंड पेएबल ऑन राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू। नहीं बोलते तो भी हम लोग नहीं कंसिडर करते। करेक्ट? ओके, अभी मेरे को बोलो डिविडेंड किस पे मिलेगा? ओपनिंग पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करंट ईयर परचेज पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बोनस एंड राइट्स पे नहीं मिलेगा। आ जाओ वर्किंग। dividend received,
बरोबर. नाउ टेल मी, करंट ईयर में शेयर परचेज किया है, उस पे लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, तो परचेज किया उसके पहले के पीरियड का है कि परचेज किया उसके बाद के पीरियड का? मिल मिल कभी रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो शेयर परचेज करने के बाद ही मिलेगा. We have to compare the date of acquisition with the period of dividend. We acquired shares in current year and on that we are receiving last year dividend. So it is before acquisition period dividend. So it is pre-acquisition dividend. ये समझा? हाँ, अभी ओपनिंग बैलेंस पे भी डिविडेंड मिल रहा है. ये ओपनिंग बैलेंस वाले शेयर कभी खरीदे रहेंगे? लास्ट ईयर में डेट दिया है क्या? नहीं. वी विल अज्यूम व्हाट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो लास्ट ईयर के बिगिनिंग में शेयर परचेज किए, उसके बाद के 12 महीने का डिविडेंड मिल रहा है. सो इट विल बी विच डिविडेंड? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड. एंट्री बोलो, पोस्ट का एंट्री, डेट क्या है? ओपनिंग पे पोस्ट एक्विजिशन है, सो 8000 इंटू 6, 48,000 पोस्ट एक्विजिशन विल गो इन डिविडेंड कॉलम एंड डिविडेंड से वो पीएनएल में जाएगा. सच बोलो, इधर तक क्वेश्चन समझा क्या? पक्का? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, बट इफ इट विल कम देन इट कैन कम फॉर फुल फ्लेज 14 मार्क्स. बहुत लेंथी क्वेश्चन. क्लियर एवरीबॉडी? चलो, डिविडेंड के बाद क्या है पढ़ो. 1 दिसंबर सेल, कितना? 18 lakhs. समझा कि नहीं समझा? अभी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे. प्रॉफिट और लॉस वर्किंग में आओ.
वही मैं बोल रहा था, एक जीरो कम है। 35 लाख, 15 lakh, 16 lakh is 31 lakh. Okay, okay, okay. How many shares are sold here? Now give me that. 10,87,000. Correct? Yeah. 800. Selling price is more, so there is a price. $714,800. एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट टू PNL. क्लियर? सेल के बाद नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड. थियरी में आ जाओ पहले. कुछ जगह छोड़ा था देखो हमने इंटरिम डिविडेंड के लिए. देखो उधर इंटरिम डिविडेंड. Tell me, what do you mean? Okay, there are two types of dividend. Do you agree? First is final dividend, other is interim dividend. Final dividend मतलब company will pay last year dividend in current year and vis-a-vis current year dividend in next year. That is final dividend. In other words, company will pay dividend after finalization of accounts. That is called as final dividend. What is interim dividend? Current year dividend paid in current year is called as interim dividend. Correct? Interim dividend का language क्या दिया मालूम है? The dividend which is paid between two AGMs are called as interim dividend. जो AGM में अप्रूव होता है ना डिविडेंड, वो जो AGM में अप्रूव होता है that is final dividend. उसके बीच में जब भी पे करते हैं that is interim dividend. इन शॉर्ट करंट ईयर डिविडेंड करंट ईयर में पे करते हैं, दैट इज इंटरिम डिविडेंड. क्लियर? पक्का? हाँ. नाउ वी शुड थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इन्वेस्टर विल मीन्स व्हाट एंट्री इन्वेस्टर विल पास. इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड, इट इज करंट ईयर डिविडेंड रिसीव्ड एंड इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट. It is post acquisition dividend. It will directly go in dividend column. So for interim dividend received, we will not do pre and post. It is always post. As per ICAI solutions, they always consider interim dividend as post. क्या current year का है post acquisition dividend. Do you agree with this? Correct? No bifurcation of pre and post in interim dividend because ICAI doesn't do that. तो हम भी उसको क्या करेंगे, पूरा पोस्ट में डालेंगे, मतलब डिविडेंड कॉलम में डालेंगे, वहां से पीएनएल में जाए. डन? नोट्स में लिख दो उधर. इट इज करंट ईयर डिविडेंड रिसीव्ड इन करंट ईयर.
is current year dividend received in current year. Next line, it is a revenue receipt. It is revenue receipt. करेक्ट. आगे ब्रैकेट में लिखो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड. एंट्री लिखो. नेक्स्ट लाइन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. बैंक टू डिविडेंड. क्लियर? पक्का? एंट्री पास करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. First, okay, sorry, 25th Jan. ₹3 डिविडेंड. करेक्ट. बोलो किस पे मिलेगा इंटरिम डिविडेंड? ओपनिंग पे मिलेगा, परचेज, बोनस, राइट्स, सब पे मिलेगा. 8 + 7 15 + 6 21 + 2100 23,100 में से 7,000 शेयर सेल हो चुके हैं. सो वी हैव 16,100 शेयर्स पे ₹3, 48,300. करेक्ट. क्लियर एवरीबडी? इट इज पोस्ट एक्विजिशन, वो समझा? दैट्स इट. ये मार्केट प्राइस दिया है. क्लोज करेंगे. आ जाओ. क्लोज करो. क्लोजिंग बैलेंस. वैल्यूएशन है ना. वर्किंग नोट नंबर,
एक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, बराबर। ये आ रहा है क्या, देखो तो 25,100,000 आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर ऑफ कॉस्ट कॉलम, market value, that is fair value. How many shares we have? हुआ ये डन? अभी बोलो क्या बनेगा? वी आर डन विथ फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट। चेक कर लो एक मिनट, किसका किसका बाकी है, 2-3 दिन का बाकी है। हुआ इधर मैडम? डन हियर? ओके, पी एन एल, चलो वी विल गो फॉर पी एन एल, सेकेंड रिक्वायर्ड पार्ट। स्टार्ट करो। नाउ हाउ टू प्रिपेयर दिस पी एन एल। पहले बॉन्ड अकाउंट चेक करो, उसमें डेबिट साइड पे पी एन एल रहेगा। देखो दो है, क्रेडिट में एक भी नहीं है, करेक्ट? हाँ, डेबिट साइड पे 2 पी एन एल। पहले है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, सॉरी पी एन एल अकाउंट, कम अगेन।
No, not required. P&L will be prepared at the end of the particular year. Anyways, we are not going to write any date in P&L. It is for the year end date. Correct? So it can be in any order. We will transfer at the end of the year. Correct? Buy. Tell me, first item. Profit on sale of bonds. कितना है? 1 लाख. ये एक आइटम हुआ बॉन्ड अकाउंट से. और भी एक रहेगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड. नो प्रॉब्लम. P&L क्रेडिट लिखना इंपॉर्टेंट है. आई होप यू हैव नॉट रिटन द डेट. ओके, टेल मी. 16. दो आइटम हुआ बॉन्ड अकाउंट से. करेक्ट. नाउ चेक इट आउट. इक्विटी शेयर दो ही है, तीन रहेगा. ओके, दो है. प्रीमियम आएगा ना दूसरा. बोलो. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ equity share. How much? 800. Dividend 96 800. 96 300. दो आइटम हो गया. हाँ, अभी और एक आइटम है रिनाउंसमेंट प्रीमियम. चेक करो जाके वर्किंग. कल कोई पूछ रहे थे वो वर्किंग क्यों बनाते हैं. Why to prepare that? So we can transfer it to P&L at appropriate time. कितना था? 67,500. डन. हुआ कि नहीं हुआ? सेवेंटीन. Clear? What is our third required part? Now that is new area. Correct? ये थर्ड के लिए लीव 5-6 लाइन्स. डन. चलो, it is new concept. We will learn this concept and we will go for this required part. This concept is given in AS 13. क्या लिखा? What do you mean by
classification. As per AS 13, there are two types of investments. Which two? That is not given in AS 13. That is from accounting point of view. AS 13 point of view, there are two types of investments, current investments and long-term investments. Fixed and variable is from accounting point of view, that's it. AS 13 में किधर भी language नहीं है वो, समझा मोनिल? So as per AS 13, I hope you remember मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया था, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. I think so it was point number 8. स्टार्ट में एकदम पॉइंट नंबर 8 लास्ट पॉइंट रहेगा, देख लो. मोनिल आपके बुक में भी रहेगा. ओह, बेच तो नहीं दिया ना? मालूम पड़ा तेरा बुक किधर इधर चने सिंह वाले के पास मिल रहा है. नहीं है ना? बुक थियरी का बुक अलग बनाया. सही है भाई, रैंक का पर बुक मेंटेन करा अच्छे से. 10-20 मार्क ऐसे ही देते हैं बुक के उसके ऊपर, सच्ची में. थियरी बुक घर पे रख के आता है, तो अभी थियरी लिखवाएगा, वो क्या करेगा फिर? ओके, तो तू वो अभी याद रखेगा, फिर घर पे जाके लिखेगा. कैसे लिखेगा मेरे को समझा नहीं. हाँ सही है यार, तू पेन से लिखता है, क्या बात है. सही है. AIR 1 नहीं, ओके 0. सो मतलब थियरी का बुक अलग है और ये प्रैक्टिकल का बुक तेरा अलग है. तो इसमें सिर्फ तूने सम सॉल्व किया है. ओ बेटा, हम लोगों को घुमाते हैं, मुझे मत घुमा. तू ये जिधर सीखा है ना, उधर के हम प्रिंसिपल है. ये हम स्कूल में करते थे बेटा. वो ऊपर वाला बैच में एक लड़का बैठा था, नाम भी बोल देगा चाहिए तो. बोलता है सर वो होमवर्क है ना, बुक घर पे भूल गया. तो बोला ओके, कौन से बुक में होमवर्क करता है? बोलते हैं सर एक होमवर्क का बुक अलग है, क्लास वर्क का बुक अलग है. करेक्ट. मैं बोला ओके, लास्ट लेक्चर का होमवर्क? बोलता है वो भी वही बुक में किया है. मैं बोला बुक बता. 2 लेक्चर नहीं आया, मालूम है वो. नेक्स्ट 2 लेक्चर नहीं आया क्योंकि उसको ले लिया. पर तू आना, हाँ आते रहना. ओह, देन आई डोंट नो कौन सा AIR आएगा. चलो ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट है, पेन से लिखना इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो थियरी वापस इसमें भी लिखता है, फिर घर पे जाके वापस थियरी लिखता है, सम्स नहीं लिखता है. एग्जाम में सम्स आएगा, पर एग्जाम में सम्स आएगा सच्ची में. होमवर्क अब तक दिया नहीं है, यही लिखता है. तो थियरी भी यही लिखता है ना, तो सम्स भी ये लिखने का ना. 8 सम तो हो गया अभी. अरे क्या नया चाहिए, थियरी रिपीटेटिव लिख रहा है. ओके यार, तो तेरे को थियरी पूरा बायट रहेगा ना. अरे थियरी बायट रहेगा ना. नहीं 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 चलना, अभी थोड़ा तो बायट रहेगा. चल बता बता, अभी ये थोड़ा खेलते हैं, रुको, टाइम है अपने पास बहुत आज. चल फैन बंद करो. कौन सा वाला? ये दोनों बंद. चलो फाइनली मोनी हाथ में तो आया. रुको अभी मेरे को लेने दो थोड़ा. या चल खड़ा हो जा जल्दी. 8 पॉइंट रिवाइज करते हैं. बोल पॉइंट नंबर 1. हाँ फर्स्ट क्या था? यू डोंट लाइक रेंट, यू डोंट लाइक रेंटल इनकम. ये ऑर्डर में है ना बेटा. वेरी गुड. फर्स्ट. सेकेंड. Okay, we will think from investors point of view. Okay, third. कौन से इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करेंगे?
उठा के मारेगा। बोरोइंग्स, इधर इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उधर बोरोइंग्स का बात कर रहा है, क्या बावरा हो गया है यार, क्या हो गया तेरे को? इसीलिए ना बुक अपना यूज किया कर। अरे तो फ्री में देंगे तो फिर बोरोइंग्स ही रहेगा ना, अपना रहेगा तो इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं समझा? समझा ना? बोरो किया हुआ बुक में लिखेगा तो इन्वेस्टमेंट बोरोइंग ही लगेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? रिवाइज नहीं किया है तो फिर 2 बार लिखने के बाद भी याद नहीं रहते तेरे को? क्यों, इधर भी एक लिखा है। नहीं समझा नहीं मेरे को, तू वो बुक में लिखा है तो वो घर पे लिखा है कि वो इधर लिखा है? ओके, तो उसमें तू इधर लिखा, तो घर पे कौन से बुक में लिखा? नहीं लिखा। देखा, घुमा रहा है। पॉलिटिक्स में जा भाई तू। वो लोग फिर भी इलेक्शन के बाद घूमते हैं, तू 2 मिनट में घूम गया है। बरोबर है, फिर मैंने पूछा इसमें है, बोलता है इसमें भी है। वो आगे का 1 से 8 पॉइंट उसमें नहीं है? पक्का नहीं है? चेक कर। क्यों नहीं लिखा इसमें? हाँ, फिर बोल जल्दी चल। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बोलते हैं बेटा, शेयर्स एंड डिबेंचर को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। तो अकाउंटिंग किसका करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। चल फिर पॉइंट नंबर कौन सा हो गया ये? 3, अभी 4। अरे क्या याद नहीं है, कितना सिंपल है, सिक्योरिटीज से ही तो लिंक है पूरा, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था क्या है। तू ही तो बोला अभी थोड़ी देर पहले। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी आएगा, बोल। 8 वाला तेरे को नहीं आता था, ये वाला तू बोल दिया। क्या? हाँ बोलना है पूरा। फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड में क्या होता है? नहीं नहीं, मीनिंग क्या होता है? रेट्स एंड डेट्स आर फिक्स। ओके, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिबेंचर एटसेट्रा, वेरी गुड। एंड वेरिएबल में? ओके, एंड एग्जांपल? इक्विटी शेयर, वेरी गुड। चल उसके बाद फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी स्टार्ट किया था हमने। बोल, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? एंट्री? और देखो ना, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं देगा तो कभी बोलेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में? पहला अटेम्प्ट में सर मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट किया है, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंटरेस्ट पे करेगा तभी डेबिट। हद हो गई। अलग क्यों करेंगे? कंबाइन करवाया है मैंने तो। दूसरा भी कहां पे बैठता है लेक्चर? नहीं ना। हाँ बोल। डैश? अभी इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता है। समझाओ यार, इसको कोई मारेगा अभी? नहीं नहीं, अभी सॉरी नहीं, अभी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो इंटरेस्ट बोला नहीं, मैं नहीं बोलेगा, फिर बोलता है तो क्रेडिट करता है, परचेस करते हैं और इंटरेस्ट हम रिसीव भी करते हैं, तो दे मैं परचेस कर रहा है ऐसा इन्वेस्टमेंट। चल सेल? ओके, एंड इसमें क्या आएगा? इस सेल के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट और लॉस। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट करने का? कौन सा सेलिंग प्राइस लेंगे? कौन सा सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कंपेयर करेंगे? एक्स के कम।
फिर अरे जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट माइनस करके एक्स इंटरेस्ट आएगा, बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो व्हाट वी विल कंपेयर बाय द वे? मतलब कैसा है मालूम है, तू खुद बोल। एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर कर रहे थे ना, किससे कंपेयर कर रहे थे? एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट से, बराबर। कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? डैश फीफो और वेटेड एवरेज। कैसा रे कैसा फेस वैल्यू ने क्या क्या खेलते रहता है। कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? डैश मतलब दिया ना, दिया। बोल, फेस वैल्यू, वेटेड एवरेज एंड और फीफो। कुछ नहीं बोला है तो वेटेड एवरेज, एंड देन यू नो ना हाउ टू कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बराबर। ओके मैं समझ गया, बट पहले फीफो और वेटेड एवरेज डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, बाद में ब्रैकेट आएगा। करें, उसके बाद क्या मिलेगा अपने को? उसको क्या बोलते हैं? ओके प्रॉफिट आया, एंट्री। ओके एंड लॉस। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। दो ट्रांजैक्शन हो गया। थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्री। ये तो स्केल लेके इसको है ना, मतलब ये इंटेंशनली झूठ बोल रहा है ऐसा लग रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट है ना, दो नहीं तीन चार बार बुलाएगा मालूम है। इंटरेस्ट रिसीव 11 स्टैंडर्ड को भी आता है यार। नहीं नहीं याद क्या है अभी, इतना सिंपल एंट्री क्या है बोल। तो फिर गलती से गलती हो गया, वेरी गुड। फिर अकाउंट क्लोज करेगा नहीं करेगा? कभी एंड ऑफ द ईयर, हाँ वेरी गुड, एंड ऑफ द ईयर को क्लोज करेगा। करेक्ट। पहले कौन सा कॉलम क्लोज करते हैं? कॉस्ट के इंटरेस्ट। ओके फेस वैल्यू। ओके फिर क्या चेक करने का? अक्रूड इंटरेस्ट है कि नहीं वो चेक करने का। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्या सोचते हैं हम लोग? वेरी गुड, क्या बात है। चलो AIR तक पहुंच गया है, 50 तक पहुंच गया। ओके अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद में इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? P&L। ओके फिर कॉस्ट कॉलम क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या रहेगा? मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू। मेरा क्वेश्चन समझ। कॉस्ट कॉलम क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या आएगा? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब वही ना, मैं ये सब सिखाया है ना, ये सब मैं लैंग्वेज बोलता है ना, तेरे को सुनना ही नहीं रहता। हाँ तो मैं भी वही करवाता इधर। करेक्ट बोल। उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। करेक्ट चलेगा, अभी याद रहेगा ना बेटा, रिवीजन हो गया अभी तेरा। अभी बोल, वैल्यूएशन करना पड़ता है कभी? मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तो हम वैल्यूएशन करेंगे। अभी मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तो हम कैसे करते हैं वैल्यूएशन? क्या क्या? फेस वैल्यू और कॉस्ट। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के फेस वैल्यू एंड कॉस्ट? फेस वैल्यू इज जस्ट इंफॉर्मेशन। आई होप तू मुझे छेड़ नहीं रहा है। कॉस्ट और फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, बरोबर ना? लोअर के हायर? पक्का? डिफरेंस आया वो दोनों में डिफरेंस रहेगा ना। तो कॉस्ट कम है तो कॉस्ट लिख देंगे, मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस ऑन। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है सेल। मैं भी वही पूछ रहा हूँ। लॉस ऑन
ये मजा आ रहा है यार, अपन हर वीक चलेगा इसको। वेरी गुड। ये आना, आते रहना। वो किधर गई? वो बोल रही थी सर आप फनी नहीं करवाते हो, किधर है? क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ। दीक्षा ना, क्या नाम है? नहीं नहीं, उसका ही आस्था नहीं, उसका नाम भूल जाता हूँ। मोक्षी या, बोल। अरे बोल अभी। मार्केट प्राइस कम रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस लेते हैं, तो वो डिफरेंस आएगा ना अकाउंट में, उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन वैल्यूएशन। लॉस किधर ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर होगा, ये बरोबर है? हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा इनकम बेरिंग सिक्योरिटी था? फिक्स। नेक्स्ट इज वेरिएबल। बोल, वेरिएबल में क्या क्या ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? पांच। फर्स्ट एंट्री, एंट्री बोलते जा। परचेज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक। चल सेकंड सेल, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे, बराबर। ओके। थर्ड बोनस। बोनस शेयर्स क्या होता है? शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर होल्डर। ओके। फ्री में कौन देते हैं? कंपनी देता है। ओके। हम क्या करेंगे एज एन इन्वेस्टर? व्हाट एंट्री वी विल पास? शेयर्स के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे, सो इट विल डिक्रीज अवर एवरेज कॉस्ट पर शेयर, बराबर है? चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। राइट्स। राइट शेयर क्या होता है? एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो कम राइट प्राइस बोला तो मेरे को डाउट आया, क्या बोल? करेक्ट। तो परचेस किया तो परचेस का एंट्री करेंगे, रिजेक्ट किया तो नो एंट्री। करेक्ट। एंड थर्ड वाला रिनाउंसमेंट का क्या करने का? रिनाउंसमेंट प्रीमियम वी विल रिसीव एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अज्यूमिंग रेवेन्यू रिसीव, बराबर है? ओके। लास्ट डिविडेंड। कितने साल का डिविडेंड रहता है? मतलब कौन से टाइप का डिविडेंड रहता है? फाइनल डिविडेंड मतलब? करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिलेगा, वैसे ही लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में मिलेगा। करेक्ट। दैट इज फाइनल डिविडेंड। ओके। फाइनल डिविडेंड रिसीव करेंगे तो वो डिविडेंड रिसीव्ड को हम क्या करते हैं? बाइफरकेट करते हैं। दो टाइप के होते हैं, कौन से दो? प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड अपना डिविडेंड है कि प्रीवियस ओनर का, बट वी आर रिसीविंग इट। करेक्ट। ट्रीटमेंट क्या आएगा? नहीं तो वो सब जाने दे, मैंने सिखाया है तेरे को, वो इधर नहीं जाता है। तो मेरे को बोल सिंपल, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? डेबिट। हाँ तो बोलना ऐसा बेटा, हम लोग में डिविडेंड मिलता है तो वी फील पैसा आया। तेरे को नहीं लगता ऐसा पैसा मिलता है? कभी डिविडेंड मिला ही नहीं ना तेरे को। करेक्ट। बट कांट। ओके। तो अब तक के जो भी ट्रांजैक्शन है तू करेगा फिर ही समझेगा, तो तू पहले सब कर ले। हाँ, करने के पहले भी पता होना चाहिए ना, तो ही तू कर पाएगा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी कर पाएगा तू जब भी तेरे को एंट्रीज पता रहेगा, ट्रांजैक्शन पता रहेगा, देन एंड ओनली देन यू कैन डू। हाउ कैन यू डू बिफोर नोइंग दिस? करेक्ट। तो पहले नॉलेज होता है कि पहले प्रैक्टिकल होता है? नॉलेज है ना, पहले थियरी होता है जो तू अलग बुक में लिखता है। करेक्ट। फिर वो बुक बेच के आता है। घर पे ही है? क्यों घर पे रखा? छोटे छोटे भाई बहन खेलते हैं? नहीं ना, आजू बाजू वाले खेलते हैं। ओके। तो थियरी थोड़ी रहेगा, क्यों थियरी नहीं आएगा? वेरिएबल इनकम बेरिंग का थियरी तो चालू है अब तक। अरे ऐसा डबल डबल क्यों कर रहा है? रिपीटर है क्या?
तो फिर दो दो बार तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करने का, जाने का कल से बुक वो भी लेके आना या। चल अभी मेरे को बोल, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एंट्री क्या है? समझाना उसको यार, अभी तेरे को बताया मैंने कि पैसा मिलेगा हम लोग को। बैंक टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, करेक्ट। एंड पोस्ट एक्विजिशन का हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और फिर कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल में ट्रांसफर होगा, याद है ये? ओके। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? मिलता है, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन एंट्री। बोलना, देखा? इसीलिए मैंने बोला तू बोल, तेरे मन में कुछ और रहता है, तेरे जबान पे कुछ और आता है। ये एक्सिस के साथ हो सकता है, नहीं समझा? जाने दे, इंटरव्यू में फंस जाएंगे। कंटेंट पे बहुत वो लोग पावरफुल रहते हैं, एंड दे आर डूइंग इट प्रैक्टिकली। ये AS13 तो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, प्रैक्टिकली करते हैं सर। तो तुम कुछ भी बोलते रहेगा ना, वो समझ जाता है, ये मार्केटिंग में डाल दो इसको, करें? चलो बैठो, थैंक यू सो मच। या नहीं, इतना पब्लिक को मजाक करवाया तो आएगा ना कल, आते रहना बेटा, आना थोड़े दिन तो आ, फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर तू खुद आएगा, पास हो गया तो खुद आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मुक्शी थोड़ा तो आप खुश हुआ रहेगा यार, बहुत हो गया सर, बस हो गया, बस उसको ही लेना, मेरे मेरे तक नहीं आना सर, है ना? हाँ, नहीं पूछेगा सबको, हर चैप्टर में आने वाला है ऐसा सर। क्या बोली? नहीं आएगी? हाँ डिपेंड्स, रिजल्ट है, बरोबर है, परफेक्ट। या नहीं आएंगे तो कांट हेल्प इट यार, हम घर पे नहीं आते लेने या, वी विल मिस यू बस, करेक्ट, एंड यू विल मिस अ लॉट। आगे बढ़ते हैं। रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन अभी सुनो। We already learned in point number 8 there are two types of investments. Point 8 I hope सबका सेम बुक में रहेगा except one, correct? Current investment and long term investment, बरोबर छे मोनेल? हाँ ठीक है ना सर? Long term investment and current investment, that is called as initial classification. कभी होता है वो क्लासिफिकेशन? इन्वेस्टर कभी सोचता है कि ये लॉन्ग टर्म है कि करंट है? इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंटेंशन, बट वो कभी कभी इंटेंशन कभी का एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब भी शेयर खरीदा, जब भी डिबेंचर परचेस किया, वही दिन पे वो इंटेंट डिसाइड रहेगा कि इसको लॉन्ग टर्म रखना है कि शॉर्ट टर्म रखना है, अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन विल बी मेड। नाउ थिंक एंड टेल मी, कैन वी चेंज दैट इंटेंशन? इन्वेस्टर का इंटेंशन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर इंटेंशन चेंज होगा तो मुझे रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स मैंने एक कंपनी के शेयर परचेज किए थे, आई वॉज लाइक आई विल कीप दिस शेयर फॉर 10 years, बट आफ्टर 2 years आई केम टू नो कि नहीं, दिस कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, नाउ आई वॉन्ट टू डिस्पोज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी विद इन मे बी 6 months. So earlier I classified it as long-term investment. Now I will classify it as current investment. That is called as changes in classification, and that is called as reclassification. Meaning clear? पक्का? So long term से current, current से long term, इसको बोलते हैं reclassification. Do you agree with this? लिखो इसमें बॉस। नहीं नहीं, अभी ये थियरी तो आप कहाँ लिख रहे हो? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लिखना अभी, अभी आप नॉर्मल अपने क्वेश्चन के बाद में मैंने आपको क्या बोला, इधर 5-6 लाइन्स छोड़ दो, इसके लिए आंसर, इधर रिक्लासिफिकेशन का आंसर आएगा 5-7 लाइन्स, फिर ये फुल पेज थियरी है रिक्लासिफिकेशन, तो ये फिर अभी नया थियरी है, ये अपने को पार्ट 2 में भी काम है।
reclassification, one page theory. स्टार्ट करें, लिखो, इट इन्वॉल्व्स conversion of long-term investment into current investment and vice versa. किया? मैंने नहीं करवाया कुछ नहीं बेटा. That was conversion of fixed income bearing securities into variable. मैं नहीं ये बोल रहा हूँ सर, अभी उसको भी पूछो. एनीवेज, बट ये किया था कन्वर्शन, कौन सा किया था हम लोग ने? फिक्स्ड इनटू वेरिएबल, दैट इज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ हियर इट इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट? इंटेंशन. वहां पे तो दिख रहा था ना, डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया था. ऐसा नहीं है, इधर कोई भी इक्विटी शेयर रहेगा, पहले करंट था, अभी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं. पहले डिबेंचर मैंने परचेस किए, पहले लॉन्ग टर्म था, अभी उसको करंट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं. यहाँ पे वी आर नॉट चेंजिंग फिक्स्ड इनटू वेरिएबल. तो फिक्स्ड का फिक्स्ड इनकम बेरिंग ही रहेगा, बट करंट का लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म का करंट हो रहा है. क्लियर? चलो यहां तक समझा. नेक्स्ट लाइन. इन दिस केस वी आर सपोज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर स्लैश करके कन्वर्शन. अमाउंट ऑफ ट्रांसफर स्लैश करके कन्वर्शन. क्लियर? एक लाइन छोड़ के लिखो, केस 1. Clear? This current investment we acquired at 100 rupees in the past. अभी जो दिन कन्वर्ट कर रहा हूं ना, वो दिन का मार्केट वैल्यू है 90 रुपीज.
करंट इन्वेस्टमेंट इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बरोबर है। हमने एक कंपनी के शेयर परचेज किए थे, ऑन दैट टाइम आवर इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर लेस देन 12 months. Later on we came to know this company is highly performing, so we have decided and we have changed our intention. Now we will keep it for long term. तो अभी मेरे बैलेंस शीट में पहले ये करंट इन्वेस्टमेंट में दिख रहा था, अभी मेरे बैलेंस शीट में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। So the question is, what is the amount of transfer? What is the amount of conversion? So how to decide ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, अभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ कन्वर्शन और अमाउंट ऑफ ट्रांसफर। बोलो क्या वैल्यू लेंगे? 100 मतलब कॉस्ट, whichever is lower। ये करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 100 है, मार्केट में 90 का भाव है, अभी मैं उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दूँ। लास्ट देर आपका नेबर whichever is lower, मतलब ओके इसमें एक ही इन्वेस्टमेंट है ना, वेटेड एवरेज का भी होता है वेयर वी हैव नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और ये जो कॉस्ट 100 बोला है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ही रहेगा। वो दोनों का वेटेड एवरेज कैसे करें, उसका सिंपल एवरेज होता है। वेट कैसे करेंगे, क्वांटिटी सेम है 95, नहीं अभी तो कॉस्ट। चलो सुन लो, वी हैव अराउंड 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, अभी करेंगे हम लोग। रूल क्या है, पहले वैल्यूएशन करने का फिर कन्वर्ट करने का, पहले वैल्यूएशन फिर कन्वर्शन। ये आप लोग ने बोला 100 करेक्ट, आपने पहले क्या किया, आपने उसको पहले कन्वर्ट कर दिया और फिर उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिखा। वाई यू सेड 100? बिकॉज सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट पे वैल्यू होना चाहिए, मतलब आपने पहले कन्वर्ट किया बाद में वैल्यूएशन किया, वैसा नहीं करना है, पहले वैल्यूएशन करना है फिर कन्वर्ट करना है। तो अभी मेरे को बोलो, अभी जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा है, करंट है, तो पहले करंट का वैल्यूएशन करेंगे बाद में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो लॉन्ग टर्म बन जाए। करेक्ट, आपने क्या किया, पहले कन्वर्ट करो लॉन्ग टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट पे वैल्यू करेगा। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। AS13 बोलता है पहले ये करंट इन्वेस्टमेंट को आखिरी बार वैल्यू कर दो फिर कन्वर्ट कर। तो मोक्षा ना, मोक्षी ने जो बोला ना दैट इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, व्हाट इज द वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब पहले करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने का फिर ट्रांसफर करने का। ये समझा कि नहीं समझा? करेक्ट। सो व्हाट वुड बी द अमाउंट, that is initial valuation, initial, this is reclassification, that is classification and valuation। अभी रिक्लासीफाई कर रहा हूं तो ये करंट इन्वेस्टमेंट 190 मेरे बुक में क्या भाव पे रहेगा, तो इसीलिए 90 पे आएगा।
दैट इज रिक्लासिफिकेशन, नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज फर्स्ट टाइम वैल्यू क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। बट जब रिक्लासिफाई होगा तो जो इन्वेस्टमेंट हम निकाल रहे हैं बुक से उसका वैल्यूएशन करो, बाद में इसको ये वैल्यू दे दो, करेक्ट, क्योंकि ये करंट इन्वेस्टमेंट मेरे बुक में 90 पे रहेगा, तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मेरे बुक में 90 पे आना चाहिए। सो विच एवर इज लोअर, याद रहेगा ये पक्का। क्वेश्चंस हैं इस पे, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एक तो अभी वो थर्ड पार्ट अपना बाकी है ना, वो बड़े वाले क्वेश्चन में ये रिक्लासिफिकेशन है, करेक्ट। केस 1 लिखा नहीं, देख रहे हो, लिख लो, राइट, केस 1 ऊपर का लिखा, हाँ वो 2-3 पॉइंट लिखा ना आप लोग ने, केस 1 कॉपी करो, कॉपी। कॉपी हुआ सबका। केस 2, the long term investment परचेज किया था 100 में, कैरिंग वैल्यू 95, कैरिंग वैल्यू समझता है, बुक वैल्यू जो बुक में कैरी होता है 95। बोलो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर समझा ना तुमको, मतलब क्या होगा, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुक से निकल जाएगा और मेरे बुक में करंट इन्वेस्टमेंट दिखेगा, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट क्या भाव पे दिखेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफर अमाउंट, कन्वर्जन अमाउंट, करेक्ट।
आंसर इज कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू whichever is lower, एंड ये केस में कितना है 95, यहाँ पे 90 था ना, यहाँ पे 95। ये लैंग्वेज स्टैंडर्ड ने दिया है, बट लॉजिकली स्पीकिंग इट इज ऑलवेज कैरिंग वैल्यू। लॉन्ग टर्म जो भाव पे रहेगा वही भाव पे अभी करंट इन्वेस्टमेंट दिखेगा। करेक्ट? पक्का? बोलो, यहां तक कोई डाउट? रिक्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले क्या करने का? पहले वैल्यूएशन, फिर रिक्लासिफिकेशन, दैट इज कन्वर्जन। डू यू अग्री विद दिस? शैल आई प्रोसीड? पढ़ो, आ जाओ थर्ड पार्ट। वो जगह छोड़ा है ना आपने, पढ़ो। सजेस्ट values at which investment in equity share should be reclassified in accordance with AS13। बोलो, समझा नहीं समझा? क्या वैल्यू पे रिक्लासिफाई करेंगे? इधर पढ़ो। On 15th May 2023, Mr. Z decided to reclassify its investment in इक्विटी शेयर्स एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले कौन सा था? करंट इन्वेस्टमेंट था, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑन 15 May 2023 शेयर्स वर कोटेड इन द मार्केट एट 180। व्हाट इज 180? मार्केट वैल्यू। करेक्ट? ओके, मेरे साथ रहना, हेडिंग लिखो। बोलो, कोई बताएगा? अभी अपने पास जो इक्विटी शेयर्स हैं, करेक्ट, उसका कॉस्ट कितना था? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट था 25,100,000, दैट वाज द क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। उसको हम अभी क्या कर रहे हैं? बाय द वे, हाउ मेनी शेयर्स वी हैव? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ना, और फेयर वैल्यू 16,100 शेयर्स हैं, एंड इसका मार्केट वैल्यू 180 है। आया? क्लियर?
हाँ कब की हो जाएगी दो बार नो पानी everybody इधर मेरे को पूछो ना बेटा क्या हुआ current case 2 is cost or carrying value whichever is lower बराबर है because it is long term appears in the books at carrying value only, so in short it is carrying value, but language is cost or carrying value whichever is lower. Agree? And here current investment cost or market value whichever is lower. Carrying value is a book value, market value is a fair market value. डाउट है उसमें कुछ नहीं? डन. यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? थर्ड पार्ट क्लियर? रिक्लासिफिकेशन समझा? चलो दैट्स इट. दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. 2 घंटे से कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 समझा कि नहीं समझा? पक्का? एग्जाम के टाइम पे कंपलसरी क्वेश्चन 8 करके जाने का, विच इंक्लूड्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स. पूरा चैप्टर क्वेश्चन 8 में कवर होता है. AS 13 में इफ एनीबडी विल आस्क क्या क्या होता है, तो फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होता है, वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होता है, क्लोजिंग वैल्यूएशन होता है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन होता है, एंड इन्वेस्टमेंट का रिक्लासिफिकेशन होता है. ये सब क्वेश्चन 8 में था, देख लो. इसलिए डाला है मैंने वो क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन किया ना तो एग्जाम के टाइम पे सफिशिएंट है. इनफैक्ट वो क्वेश्चन में डिविडेंड भी है, इंटरिम डिविडेंड भी है एंड फाइनल डिविडेंड भी है. इट इज एग्जॉस्टिव क्वेश्चन विच कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स. क्लियर? Any doubt? We have 1 hour. In that 1 hour, we will complete remaining 5 questions. 5 है, 6 है rather, 6 questions. All answers are given in printed form. You are not supposed to read the answers. Correct? नहीं तो कैसा है, मजा नहीं आएगा जो अपन डिस्कस करने वाले. आंसर्स क्यों प्रिंटेड दिए हैं? बिकॉज इट इज थियोरेटिकल आंसर्स. तो जो भी स्टैंडर्ड्स में थियरी रहेगा वो सब प्रिंटेड दूंगा. प्रैक्टिकल रहेगा वो सब सॉल्व करना पड़ेगा. करेक्ट? सो तुम आंसर चेक नहीं करना, इधर इधर ही देखो, उधर देखो भी मत. थोड़ी देर. भारत लिमिटेड wants to reclassify, I am in question number 9. Bharat Limited wants to reclassify its investment as per AS 13. Decide the amount of transfer based on the following info. 3 cases हैं. Case 1, a portion of current investment purchased for 20 lakhs. 20 lakhs क्या है, कोई बताएगा? Cost 20 lakhs to be reclassified as, come on. So current investment long term investment में convert हुआ है. ये समझा कि नहीं समझा? As the company has decided to retain them. Okay. Market value as on the balance sheet date was 25 lakhs. बोलो किस पे वैल्यू करेंगे? Cost or market value, whichever is lower. So answer is 20 lakhs. Simple. रुक जाओ. डाउट है? रुक जाओ. आंसर कैसे लिखना है? 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एक एमसीक्यू आएगा, डायरेक्ट टिक मार्क करना है. सेकंड, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. करेक्ट? डायरेक्ट क्वेश्चंस आए तो डायरेक्ट आंसर लिखने का. थर्ड, न्यूमरिक क्वेश्चंस आएंगे. न्यूमरिक क्वेश्चंस आया तो यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. एंड फोर्थ, ऐसे केस स्टडी वाइज क्वेश्चन आएंगे. हाउ टू राइट आंसर्स फॉर दिस. सुन लो, 4 पॉइंट में आंसर लिखने का. पॉइंट नंबर 1, we have to write correct name and number as per AS 13 accounting for investments. पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन लिखने का कि ये क्वेश्चन किसके बेसिस पे, वैल्यूएशन के रिक्लासिफिकेशन. तो रिक्लासिफिकेशन का पूरा थियरी लिखने का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन. करेक्ट? या सी, जो गाइडलाइंस दे रहा हूँ ना वो फॉलो किया करो, बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट माइंड. मुझे पता है क्या क्या करना है, क्योंकि आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थियरी रहेगा.
You have to bear with it. If you want to clear and you want to get 85 plus 80 plus in paper number 1, you have to learn theory. You can't run away from theory. And according to me, it should be in same book. Correct, Manoj? Yeah. चलो यहाँ तक क्लियर. एज पर एस 13 ये आंसर कैसे लिखने का? एज पर एस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कॉमा ई current investment is reclassified as long-term investment, then the value of transfer is cost or market value, whichever is low. And if long-term investment is reclassified as current investment, the value of transfer is cost or carrying value, whichever is lower. इसको बोलते हैं provision. Correct name and number, then provision. Relevant provision. आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वैल्यूएशन का सम है कि रिक्लासिफिकेशन. ये समझा? उसके बाद में इन द गिवन केस फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट में चाहिए तो कंक्लूजन. क्लियर? अभी इधर फर्स्ट पैरा समझा क्या लिखना है, उसके बाद में केस 1. बोलो केस 1 क्या बोल रहे हैं? पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज एट 20 लाख, मार्केट वैल्यू 25. किस पे वैल्यू करेंगे? 20 lakhs. देख लो आंसर, मेरे साथ रहना. पढ़ो. एज पर एस 13 रिवाइज्ड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए. आगे वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम, बोलो, ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू at the date of transfer. Okay, lower of cost or market value low, fair value low, it is one and the same. Do you agree with this? उसके बाद first पढ़ो. In first case, the market value is 25 lakhs, which is higher than the cost 20 lakhs. Therefore, the transfer to long-term investment should be carried at cost 20 lakhs. समझा कैसे लिखा है? Okay. आ जाओ इधर second case. Another portion of current investment purchase for, क्या है ये? Reclassified as long term investment. तो वापस current to long term हो रहा है. Market value is 6,50,000. बोलो. हाँ, तो मेरे को एक सोच समझ के आंसर दो. अभी मेरे बैलेंस शीट में करंट इन्वेस्टमेंट क्या भाव पे रहेगा? 15 लाख पे रहेगा. करेक्ट. फिर अभी ये इन्वेस्टमेंट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में 6,50,000 पे आएगा. 650 पे आएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो लॉस होएगा तो डिफरेंस 8,50,000 किधर जाएगा? P&L. सो दैट 850 विल बी ट्रांसफर टू P&L. इन शॉर्ट कितने पे वैल्यू करेंगे हम लोग? 650 इज अमाउंट ऑफ ट्रांसफर एंड 8,50,000 ट्रांसफर टू P&L. पढ़ो. इन द सेकेंड केस क्या लिखा है? Market value of the investment is, come on, which is lower than what? 15 lakhs. Therefore, the transfer to long-term investment should be carried at 6,50,000 and the loss of 8,50,000 should be charged to P&L. ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? केस 3. Certain long-term investment no longer considered for holding purpose. हमने जब भी परचेस किया तभी लॉन्ग टर्म था, अभी हमको लग रहा है ये ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम बेच देंगे. सो इट इज रिक्लासिफाइड एज, कम ऑन, लॉन्ग टर्म से करंट में आया. वैल्यूएशन कैसे होगा? कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर. ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? बट हैव बीन और हैड बीन रिटन डाउन टू 12 lakhs. मतलब पास्ट में है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होता है, बट पास्ट में रिडक्शन हुआ है अदर देन टेम्पररी रिडक्शन हुआ रहेगा, तो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया रहेगा, 12 लाख पे लेके आए. सो बुक में क्या भाव है? 12 लाख. सो कैरिंग वैल्यू 12 लाख, कॉस्ट कितना है? 18 लाख. विच एवर इज लोअर किस पे आएगा? पढ़ो. In third case, the book value of investment is, which is lower than the, below 18 lakh. Here the transfer should be at, and hence this reclassified as current investment should be carried at 12 lakhs. Manageable.
समझा क्या किया हमने ये क्वेश्चन में? पक्का? ये सब क्यों प्रिंटेड दिया है, अदरवाइज सब मेरे को डिक्टेट करना पड़ता। तो फिर कैसा होता है, इंस्टेड ऑफ 1 आवर वी हैव टू स्पेंड 2 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स बिहाइंड इट। सो जो भी थियोरेटिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे उसमें हर स्टैंडर्ड में मैं आंसर प्रिंट करके देगा। दिस इज गाइडेंस और आई कैन से गाइडलाइन आंसर्स। अभी बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ द सोल्यूशन, तो वो लोग घर पे खुद जो नोटबुक मेंटेन किया रहता है उसमें खुद के लैंग्वेज में आंसर लिख के आते हैं। रिक्लासिफिकेशन फिर भी ठीक है, लैंग्वेज इज क्वाइट मैनेजेबल। आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ये इंस्टीट्यूट के सोल्यूशंस है, ऑथर्स के सोल्यूशंस है, तो आपको उधर पैरिटी नहीं मिलेगा। सो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस एट होम। खुद के लैंग्वेज में आंसर लिखने का कैसा, 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, करेक्ट नेम एंड नंबर, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। तो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी, इफ यू विश यू कैन डू दैट। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझा कि नहीं समझा? अभी मैं आपको 5 मिनट्स देगा, अब 5 मिनट्स में ये क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके दो रफ में। पैर में वी विल डिस्कस एंड वी विल कंक्लूड। सोचो। On 15 June 2018, Y Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13 revised. Decide and state the amount of transfer based on the following information. So वापस क्या फाइंड करना है? Amount of transfer मतलब value of transfer, value of conversion. Do you agree with this? A portion of, come on, क्या लिखा है? Purchased on 1st March 2017 to be reclassified as current investment. लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 14 lakhs. Had been written down by 2 lakhs. ये क्यों कम किया रहेगा? Because reduction was other than temporary. So 12 lakh रहेगा बुक में, carrying value is 12 lakh. Market value is how much? बोलो किस पे वैल्यू करेंगे? 14 lakh, 12 lakh, 11 lakh. रिटर्न डाउन बाय 2 लाख लिखा है ना, 2 लाख से कम किया। सो 14 lakhs, 12 lakhs एंड 11 lakhs। बोलो कौन सा लेने का? रूल क्या है? कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर। कंफ्यूज करने के लिए मार्केट वैल्यू दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। करेक्ट, सो आंसर इज 12 लाख। देख लो ये फर्स्ट, देखो ये प्रोविजन लिखा है, समझा? पढ़ो फर्स्ट। In this case, carrying amount of investment is less than the cost, hence this reclassified current investment should be at 12 lakh. अपने को अपने केस में लिखने का। नंबर 1, in this case, cost of long-term investment is 14 lakhs, whereas carrying value is 12 lakh. It will be valued at, or the amount of transfer is 12 lakh. खत्म, अपनी लैंग्वेज। क्लियर? बट ऊपर प्रोविजन जो है वो AS 13 के लैंग्वेज में, मैंने जो लैंग्वेज दिया वो सब स्टैंडर्ड का लैंग्वेज होता है। मुझे पता है तुमको मार्क्स कैसे मिलेगा। सो इफ यू विल राइट स्टैंडर्ड लैंग्वेज यू विल गेट द आंसर्स, यू विल गेट करेक्ट आंसर्स। या आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझा सबको? सेकेंड, फर्स्ट इज डन। सेकेंड, अनदर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या भाव में परचेज किया है? ओरिजिनल कॉस्ट 7 lakhs, तो 7 लाख है, बट हैड बीन रिटर्न डाउन टू 5 lakh। मतलब बुक में कैरिंग वैल्यू कितना है? 5 lakhs।
मार्केट वैल्यू 450, बोलो 5 लाख का वैल्यू। क्लियर। थर्ड, पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेस्ड ऑन 15 मार्च, कितने में? To be reclassified as long term, company decided to retain them. Market value on 31st March 18 6 lakhs and 15 June 8.5 lakh। कौन सा लेना? नहीं ऐसे नहीं, पहले मेरे को रूल बोलो। करंट टू लॉन्ग टर्म जा रहा है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, कौन सा लो? फेयर वैल्यू कौन से डेट का? कौन से डेट का मार्केट वैल्यू लेंगे? डेट ऑफ ट्रांसफर के बैलेंस शीट डेट, बोलो। आंसर इज डेट ऑफ ट्रांसफर। प्रोविजन भी ये देखो ना, लिखो, ये पढ़ो। एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर reclassified as current investment. Transfer should be made at lower of cost or carrying value. Okay, carrying value कौन से डेट का? Current investments are reclassified as long term. Transfer should be made at lower of cost or fair value कौन से डेट का? ऑब्वियसली ना, कोई भी दिन का मार्केट वैल्यू थोड़ी लेंगे। रिलायंस का मार्केट वैल्यू तो डेली चेंज होएगा, तो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू डेली चेंज होता है। कौन से डेट का मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे? जो दिन कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। करेक्ट। सो कौन सा लेने का बोलो? 6 lakhs के 8.5, whichever is lower। क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये दोनों में कौन सा लूं? ये 6 लाख भी मार्केट वैल्यू है, 8 लाख 50 भी मार्केट वैल्यू है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर का मार्केट वैल्यू लेंगे ना, कंपैरिजन करना है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कौन सा मार्केट वैल्यू लेने का? हाँ, तो 2 दिया है, इसलिए मैं पूछा 6 लाख लेने का कि 8.5 लेने का। सो 8.5 लिया मैंने। देन कंपेयर विद कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। हाँ, परफेक्ट। कॉस्ट नहीं बेटा, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। कॉस्ट तो 7 लाख ही है, बुक वैल्यू इज कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू मतलब बुक में 6 लाख पे आ गया। बोल आगे। नहीं होएगा। लैंग्वेज इज नॉट कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लैंग्वेज इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। वही, इसीलिए तो एक एक वर्ड का मीनिंग होता है उधर। करंट टू लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो क्या आंसर होना चाहिए? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। 7 लाख कॉस्ट है कि 6 लाख कॉस्ट है? 7 लाख कॉस्ट है। 6 लाख तो कैरिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है। वाई शुड आई कंपेयर बुक वैल्यू? बोलो उधर। आस्था, डाउट, नेबर? हाँ, दिया है 15 जून, फर्स्ट लाइन में ही दिया है। करेक्ट। ऑन 15 जून वाई लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई। करेक्ट। या सेकंड क्लियर था। थर्ड देख लो। थर्ड, in this case reclassification of current investment into long term investment will be made at, come on, as cost is less than the fair value। समझा? Fourth, another portion of current investment purchased on 7th December 2017, कितना है? so ये 4 लाख है। cost to be reclassified as long term, market value 31st March and 15 June। पक्का? क्या लेंगे? whichever is, देख लो। फिर एक एक वर्ड मैटर करेगा बॉस। आपने जो सोचा ना वो सही सोचा कि सर बुक में 6 लाख पे है तो 6 के साथ कंपेयर करो 8.5 को, बट स्टैंडर्ड का लैंग्वेज के हिसाब से जाते हैं, देन इट इज रॉन्ग। इट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, नॉट कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। करेक्ट? क्लियर यहां तक एवरीबॉडी? पक्का? क्वेश्चन 11, आंसर नहीं पढ़ना प्लीज।
Read. Think about it. Okay. I will read this question, then we will discuss, and then we will think how to write the answers. Correct? An unquoted long-term investment. Unquoted मतलब तुम लोग एक एक वर्ड पढ़ने का हैबिट डालो. इट इज अ हैबिट. लॉयर एक एक वर्ड के लिए कोर्ट में केसेस करते हैं क्योंकि वो वर्ड का इंटरप्रिटेशन होता है. ये हैबिट होता है. ये हैबिट क्रिएट करना पड़ता है. लाइटली मत लो. सीए इंटर लाइटली नहीं ले सकते. उसको सिंसियरली पढ़ना है ना, तो वो खुद पढ़ेगा एक एक वर्ड. इट इज हैबिट. मतलब कोई बोलेगा तो तुमको लगेगा हाँ ये पढ़ना चाहिए. तो आज के बाद जब भी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, एक एक वर्ड मैटर करता है. अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अनकोटेड मतलब क्या? मतलब अनलिस्टेड. कैन आई से अनकोटेड मतलब मार्केट में वो शेयर कोट नहीं हो रहे हैं. करेक्ट. अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. हमने अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया विच इज कैरिड इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख. हमने कितना इन्वेस्ट किया था? 2 लाख रुपीज. द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन May 2012 showed that the company was incurring heavy cash losses with a declining market share and the long term investment may not fetch more than 20,000. ये समझा कि नहीं समझा? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था. वो अनलिस्टेड कंपनी लॉस मेकिंग हो चुका है. करेक्ट. अभी हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट में 20,000 का भाव है. सो मार्केट वैल्यू इज 20,000. फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज नॉट येट प्रिपेयर्ड एंड सो. ओके ठीक है. माई पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन का बात कर रहा है. बरोबर है. सोच समझ के आंसर देना. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यू किसके होता है? कॉस्ट इज 2 लाख. बराबर. बट ये अभी मार्केट में 20,000 हो गया है. तो दिस रिडक्शन इज टेम्पररी के अदर देन टेम्पररी? This is because of market fluctuation के bad financial position of the company, adverse financial position of the company, उसके कारण ये loss है और उसके कारण ये reduction हो रहा है. So this is not temporary fluctuation. This is other than temporary. तो other than temporary reduction रहेगा तो long term investment को मैं किस पे वैल्यू करेगा? मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेगा. सो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस द रिडक्शन इज अदर देन टेम्पररी. एंड इन दिस केस दिस रिडक्शन इज ड्यू टू heavy cash losses in that unlisted company. So it seems that this reduction is other than temporary. So investor has to provide that loss in his books of accounts and value his long term investment at 20,000. कितने का लॉस बुक करना चाहिए? 1,80,000 का प्रोविजन करना चाहिए लॉस के लिए. सो प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड. कितने का? 1,80,000 का. और आई होप यू नो प्रोविजन ऑलवेज P&L डेबिट से होता है. तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. बोल किधर तक क्लियर? आंसर दो. अभी बोलो लिखने का कैसे? ये पढ़ो. ये वाला पार्ट जाने दो, जाने दो. यहाँ से पढ़ो. As per AS 13 accounting for investments, long term investment should be valued at, come on, unless the reduction is here cost of unquoted investment was, however fair value is only, this reduction is due to
suffered by the with declining which is other than in nature. On this basis, the fact of the given case clearly suggests that the provision of diminution matlab reduction of 1,80,000 should be made to reduce the carrying value of long-term investment to 20,000 in financial statement 31st March 2010. इन शॉर्ट लॉस बुक करना चाहिए, P&L में प्रोविजन कर देना चाहिए. सच बोलो ये समझा. यू अंडरस्टूड दिस वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन? पक्का? हेलो, ये सब 4, 4, 5, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. वैल्यूएशन एंड रिक्लासिफिकेशन ये क्वेश्चन 1 में आ सकता है. एंड आजकल तो पीछे के भी क्वेश्चन में 2 तो मिनिमम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन 1 में तो आ ही रहा है, पीछे भी 2 मिनिमम दिखा रहा है. यू नेवर नो 2 का 3 कभी करेंगे, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द वेटेज ऑफ स्टैंडर्ड. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12. सोल्यूशन नहीं पढ़ना, रीड करो अच्छे से. एक बार रीड करो, सोचो क्या अजम्पशन ले रहे हो वो भी सोचो, एंड वैल्यूएशन करके दो. Think about it. Come on. A Limited invested in the shares of XYZ Limited on 1st December 2019 at a cost of 50,000. So किधर इन्वेस्ट किया है? दिस इज अवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 50,000. उसमें से 25,000 रुपीज शेयर्स वर परचेस्ड विथ एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर 6 months and remaining 25,000 rupees shares were purchased with an intention to hold for. समझा कि नहीं समझा? A Limited also earlier purchased what? Come on. कितने का? Silver on 1st April 2019. Market value of investment as on 31st March 2020 is given here. शेयर्स का मार्केट वैल्यू दिया है, कितना है? एंड एक मिनट, शेयर थे कितने के? 50 से 47,500 हुआ. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शेयर इज, समझा कि नहीं समझा? गोल्ड का भी मार्केट वैल्यू है, सिल्वर का भी मार्केट वैल्यू है. हाउ अबाउट इन्वेस्टमेंट विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर? यस मैम, टेल मी. Correct. Whichever is lower. Yeah. Oh, we do accounting. See, accounting part we don't prepare account, but AS13 covers gold and silver investment. No. AS13 में cover होगा कि नहीं होगा? AS13 में investment in gold will not be covered. What is the definition of investment? You are challenging the definition. Definition क्या था? Investments are assets. तो एक asset है, इस पे क्या मिलेगा? तो ये इस पे डिविडेंड मिलेगा क्या? गोल्ड पे, सिल्वर पे? नहीं. चलो, इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं. फिर रेंट मिलेगा? नहीं. कैपिटल अप्रिसिएशन? यस. Then gold and silver first of all will come under AS13 or will not come? It will definitely come under AS13. Now next question. If it comes under AS13, then we have to classify first, either long term or current. Bolo. Bolo. Normally gold and silver are long term investment. Correct? Now tell me, if it is long term, then it should be valued at cost. Simple. We will value it at cost. So cost कितना है? 1 lakh and 30 lakhs. We will ignore market price. समझा कि नहीं समझा? पक्का? सो उसका वैल्यूएशन में तुम टेबल भी बना सकता है. कैसे टेबल बनाने का?
सी इट इज अल्टीमेटली एन आर्ट. खुद को पता होना चाहिए हाउ टू राइट द आंसर. यू कैन गो इन पैराग्राफ फॉर्म, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. यू कैन प्रिपेयर टेबल. मैं तो ऐसे स्टेटमेंट बनाऊं, देखो, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st March 2020. इसके ऊपर पहले प्रोविजन पूरा सब लिख देने का. वैल्यूएशन का समय ना, एज पर AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस द रिडक्शन इज अदर देन टेम्पररी, एंड करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. ये प्रोविजन पूरा लिख दिया, उसके बाद में ये बना देगा. दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग. क्या है इसमें, चलो क्या क्या है. इन्वेस्टमेंट इन करेक्ट. थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा करंट इन्वेस्टमेंट है. अभी बोलो लॉन्ग टर्म का कॉस्ट कितना था. सो ये 25,000 पे वैल्यू करेंगे. करंट का कॉस्ट कितना था, 25,000. मार्केट वैल्यू कितना था, 23,750. विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे. समझा कि नहीं समझा, पक्का. सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट इन क्या अज्यूम करेंगे, किस पे वैल्यू होगा. 1 लाख है ना. लाइकवाइज सिल्वर, अगर ये गोल्ड एंड सिल्वर 2-4 साल पहले परचेस किया है तो अज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा. इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म. अग्रीड. 30 lakhs कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे. दैट्स इट, हो गया. टोटल कर दो, इसका मिल जाएगा 31 प्लस 48,750, 31,48,750. ये टेबल भी बना सकते हो इफ यू वांट. समझा कि नहीं समझेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द आंसर्स. हाँ, देखो इधर पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़ो. एज पर रिवाइज अकाउंटिंग फॉर investments. For investment in shares, if the investment is purchased with an intention to hold for that is less than 1 year, then it will be classified as, and it will be valued at cost and fair value, correct, whichever is lower. In the given case, 25,000 shares held as a current investment will be carried in the books at 23,750, that is 47,500 divided by 2. ये समझा. If equity shares acquired with an intention to hold for long term period more than 1 year, then should be considered as and will be shown at in the balance sheet. However, provision for diminution should be made to recognize a decline if it is other than
temporary. In the value of investment, okay. Hence, 25,000 rupees shares held as a long-term investment will be carried in the books at 25,000 only, because given reduction is not other than temporary, it is temporary. ये सब एक्सप्लेनेशन दे के बाद में वो टेबल बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Gold and silver are generally purchased with an intention to hold for long-term period. Hence, the investment in gold and silver should continue to be shown at cost on 31st March. Gold 1 lakh and silver 30 lakh. That's it. बोलो, ये क्वेश्चन समझा क्या? पक्का? Question 13, Albert Limited. Read this question, think about it. Limited has made the following investments. They have invested in shares, equity shares, on 1st June 2010. Scrip X, Y and Z. ये क्या होता है? अलग अलग कंपनी के शेयर्स. लाइक मेरे पास रिलायंस का शेयर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, टाटा पावर. तो मेरे पास 3 स्क्रिप्स हुए. करेक्ट. उसको बोलते हैं स्क्रिप एक्स, वाई एंड जेड. कॉस्ट दिया है. डू यू अग्री? गोल्ड कितने में परचेस किया? कभी परचेस किया? 2007 में. तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा. इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड 6 lakhs 31st March 10 को किया है. परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉस्ट 5 lakhs 1st April 10 को किया है. हाउ विल यू ट्रीट दिस इन्वेस्टमेंट एज पर एप्लीकेबल ES इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011? इफ द वैल्यूज ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज. मतलब मार्केट वैल्यू दिया है सबका. करेक्ट. अभी इधर इक्विटी शेयर को क्या अज्यूम करेंगे? शॉर्ट टर्म अगर अज्यूम किया तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. करेक्ट. बोलो, स्क्रिप एक्स कितने का था? 180. मार्केट वैल्यू 190. किस पे वैल्यू होगा? स्क्रिप वाई 50 एंड 70. किस पे वैल्यू करेंगे? 50. स्क्रिप जेड 170 एंड 40. किस पे वैल्यू करेंगे? 40. दिस इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस. वैल्यूएशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस. इंडिविजुअली वैल्यू कर रहा हूं. दूसरा होता है वैल्यूएशन ऑन कैटेगरी वाइज. कैटेगरी मतलब पूरा इक्विटी शेयर का कॉस्ट एंड पूरा इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू. उसको बोलते हैं कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन. इफ इट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, तो इंडिविजुअल भी अलाउड है, कैटेगरी भी अलाउड है. If it is long term investment, then only individual is allowed. Individually value करो, ग्रुप में नहीं लाने का. ये गया के गया. पक्का. आगे बढ़ता हूं. मार्केट प्राइस दिया है. ओके. गोल्ड लॉन्ग टर्म अज्यूम करेंगे. इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली. कितना है? 3 lakhs. म्यूचुअल फंड वी विल अज्यूम इट इज लॉन्ग टर्म. करेक्ट. 6 lakhs and 450. We are assuming this reduction is temporary reduction, hence it will be ignored. Correct. And 6 lakhs पे वैल्यू करेंगे. अब बोलेगा हमको कैसे समझेगा सर टेम्पररी के अदर देन टेम्पररी? क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है. कैश लॉसेस हुए, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ, ये हुआ, तो इट इज अदर देन टेम्पररी. अदरवाइज इट इज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, देन इट इज टेम्पररी. डू यू अग्री विद दिस? परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था. गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7 लाख हो गया. बोलो, 5 लाख पे वैल्यू करेंगे. डू यू अग्री विद दिस? अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना. म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट है कि लॉस है? म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड कितने में परचेस किया था? एंड मार्केट प्राइस 450, तो लॉस है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्रॉफिट है कि लॉस है? 5 लाख में परचेस किया था, 7 लाख हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट है. इसको सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? इसका प्रॉफिट उसके लॉस के सामने. पढ़ो. ऑल्सो एक्सप्लेन, इज इट पॉसिबल टू सेट ऑफ डिमिनिशन इन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अगेंस्ट appreciation in the value of investment of government security?
Fixed and variable is from accounting point of view, not from a studying point of view. Set off is allowed or not allowed? बोल क्यों? दोनों तो लॉन्ग टर्म दिख रहा है मेरे को. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हमने लॉन्ग टर्म बोला, म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म ही बोला. बोथ आर लॉन्ग टर्म ओनली. एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट इज द डिस्कशन. बुक में इट इज एट कॉस्ट. ओके, तो प्रॉफिट और लॉस आएगा ही नहीं. बट दे आर सेइंग इफ यू वांट टू सेट ऑफ, कैन यू डू दैट? ओके, सुन लो. इफ इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट हैज टू बी वैल्यूड ऑन इंडिविजुअल बेसिस. उसको कैटेगरी एंड ग्रुप बेसिस पे वैल्यूएशन ही नहीं कर सकते. सबका साथ में वैल्यूएशन करेंगे ना तो एक दूसरे के लॉस सेट ऑफ हो जाएंगे. बट तुम इंडिविजुअली वैल्यू करने वाला है तो फिर लॉस एंड प्रॉफिट सेट ऑफ हो ही नहीं सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. करेक्ट? चलो आंसर चेक करो. एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कैन आई से ये वैल्यूएशन वाला सम है. Investment in shares. If the investment is purchased with an intention to hold for, then it will be considered as current investment and valued at lower of cost or realizable value as on 31st March. बराबर है. स्क्रिप एक्स कितने पे वैल्यू करेंगे? 180 पे. कॉस्ट 180 है, स्क्रिप वाई 50, कॉस्ट 50 है, एंड स्क्रिप जेड 40,000, दैट इज मार्केट वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करेंगे. समझाइए आगे. If equity shares are acquired with an intention to hold for long term period, दोनों ऑप्शन दिया है वो लोग, then it will be continue to shown at cost. However, provision for diminution should be recognized if loss is other than temporary. As per second point, gold का क्या बोला बोलो? As per the standard, investment acquired for long term period should be valued at cost. Okay, gold is generally purchased with an intention for लॉन्ग पीरियड. गोल्ड को किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट. मैनेजेबल. म्यूचुअल फंड को हम क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मानेंगे तो इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या मानेंगे? ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट. डू यू अग्री विद दिस? यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. मतलब वो जो नीचे लिखा है ना, इज इट पॉसिबल टू सेट ऑफ? बोलो, इज इट पॉसिबल टू सेट ऑफ? नो. It is not possible to set off diminution in investment in mutual fund against appreciation in the value of investment in government securities, as the gain is unrealized on government security, which will not be recorded in the books, whereas if the reduction in the value of mutual fund is of permanent in nature, then loss only will be recognized in P&L. ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? लास्ट क्वेश्चन. इसके MCQs कंप्लीट कर देना आज के लेक्चर के बाद. कंपलसरी MCQs कंप्लीट करना. अराउंड 40-44 MCQs हैं, उसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशंस वाले हैं. कंपलसरी कंप्लीट करना, पीछे आंसर दिया हुआ है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू ऑल MCQs. जो भी कैलकुलेशंस हैं आप रफली उधर ही टेक्स्ट बुक में लिखना है तो लिख लें. डाउट्स रहेंगे तो लेके आना. हाँ, टिक करना है उधर से. टिक कर दो तो कैसा है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उसका टेस्टिंग हो जाएगा. अगर पढ़े हैं और आता है ना तो यू कैन सॉल्व ऑल दोस MCQs. कहाँ पे कुछ रॉन्ग रहेगा, आपका रॉन्ग हो रहा है कि उधर आंसर में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, प्लीज लेके पढ़ो. लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन. आई विल रीड. मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड. अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया. Following information is in this regard is given. Okay, म्यूचुअल फंड ABCD. डेट ऑफ परचेस दिया है, परचेस कॉस्ट दिया है, ब्रोकरेज दिया है, स्टैम्प ड्यूटी दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है. आराम से 4 इन्वेस्टमेंट है. पहले ये समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कम ऑन क्लासीफाई. एंड सेकेंड क्या पूछा है? वैल्यू. सो क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन वाला समझ. अभी मेरे को बोलो, हम कौन से डेट पे हैं?
This is called as valuation date. 31st March 2021 is valuation date. समझा ये? अभी 31st मार्च 21 को हम हैं म्यूचुअल फंड ए के बारे में बात करते हैं. ए परचेस कभी की है? 17 में परचेस किया है, तो ये शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? सो दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अभी बोलो लॉन्ग टर्म वैल्यू किस पे करेंगे? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट में सब ऐड होता है, ब्रोकरेज भी ऐड होएगा, स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड होएगा. आई होप यू रिमेंबर दिस. बी इन्वेस्टमेंट कभी परचेस किया है? हम कौन से ईयर में? 2021. मतलब ये करंट ईयर में परचेस किया है कि पास्ट में? तो इसको क्या मानेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट. ये क्वेश्चन ही उसके ऊपर है. क्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स. समझा ये? करंट है. बोलो करंट किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. कितना है कॉस्ट? 25,175 एंड मार्केट वैल्यू 24,220. किस पे वैल्यू करेंगे? समझा नहीं समझा? सी 1121. बोलो अभी परचेस किया है 75,375 एंड 78,190. बोलो विच एवर इज लोअर. एंड डी 75,2020 करंट ईयर में ही आता है ना. 70,325 एंड 65,880. बोलो विच एवर इज लोअर. आंसर देख लो, टेबल बना के दिया है. म्यूचुअल फंड बोलो ए कौन सा है? पहले क्लासीफाई हो गया अपना. करेक्ट. कॉस्ट कितना है? 5220. मार्केट वैल्यू इतना है. कैरिंग वैल्यू मतलब वैल्यूएशन क्या आएगा? 15,220 क्योंकि लॉन्ग टर्म है, कॉस्ट पे वैल्यू करने का. लाइकवाइज बी सी एंड डी तीनों कौन सा इन्वेस्टमेंट है? करंट. कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, विच एवर इज लोअर लेना. टोटल मिल जाएगा. अभी इसमें एक अजम्पशन क्या है? ये ए इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें मार्केट प्राइस कम है. देख लो, वी आर अज्यूमिंग इट इज टेम्पररी रिडक्शन. विच रिडक्शन? टेम्पररी. इसलिए हमने इग्नोर किया उसको. अदर देन टेम्पररी रहता तो उसका प्रोविजन करना पड़ता, मतलब लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता पीएनएल में. एंड पीएनएल में क्या लिखते हैं हम? टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन वैल्यूएशन और प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यूएशन. क्लियर? पक्का? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? एमसीक्यूज ट्राई करेंगे आप लोग घर पे या? सच बोलो, AS13 समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड AS13? या? Now what is the agenda for tomorrow's lecture? सुन लो. We will go for theoretical chapter and that is framework. कल framework start करेंगे and complete भी करेंगे. या हाँ, so if you want you can solve practical questions and don't read theory. You can solve practical questions from module. If you will find same question, don't solve. If you will read and you will say कि सर बहुत सिंपल था, तो don't solve that. But बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन सीखेंगे सॉल्व कर देते. या पर तू लाया नहीं ना, लाना इंपॉर्टेंट है. या चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर.